بھائی معاملہ کیا ہے؟ آج مکے کی دھرتی میں سوائے نور کے کچھ نظر نہیں آتا، جہاں دیکھو وہاں نور. معاملہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج اللہ کا حبیب دنیا میں آنے والا ہے. آج اللہ کا حبیب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جھوم کے بول دو، سبحان اللہ اللہ. کا حبیب دنیا میں آنے والا. قربان جاؤ میرے بھائیوں. دنیا کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بولیے نا. روٹا ہے. بولنے میں ڈرنے کی بات کیا ہے جی؟ لیکن قربان جاؤ، جب میرا نبی اس دھرتی پہ آیا، جس وقت میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرا نبی رویا نہیں، چلایا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہی صاحب میرے نبی نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، پھر سر کو اٹھایا، دعا مانگی. کس کے لیے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، اپنے جنتی کل حسین و حسن کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا یا رب حبلی امتی، یہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے پروردگار میری امت کو بخش دے. جھوم کے بول دو. سبحان اللہ. اب مجھے کہنے دیا جائے کہ جب وہ نبی اپنی پیدائش کے وقت، اپنی میلاد کے وقت ہم گناہگار امتیوں کو نہیں بھولا، تو ہم گناہگار امتی اس کی پیدائش کو کیسے بھول جائیں گے، اس کی میلاد کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہی بات ہے کہ 1450 سال ہو گیا مسلمان اپنے نبی کی میلاد کو بولیے نہیں بھولا. اور پوائنٹ دے دوں، ہاتھ اٹھائیے کس کو بھی اور سننا ہے، رکھ لیجیے. نہیں اٹھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ سیریس گفتگو کروں گا. شاید اس سے پہلے آپ نے ایسی میلاد مصطفیٰ نہ سنی. پیور میلاد پہ تقریر کر رہا ہوں، پیور. اس سے پہلے آپ نے ایسی میلاد چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن بول رہا ہوں. ہمیں نیند میں لگ بھی نہ تھا. جب دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ ارے بولیے نا، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ بھائی 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اندھیری کوٹری کے اندر تھا، اجالے کی دنیا میں آیا ہے. رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ ارے بولیے نا. ارے بھائی ہم آپ کو 9 مہینہ نہیں، صرف 9 دن ایک کمرے میں بند کر دیں. جب 9 دن کے بعد باہر نکالیں گے آپ روئیں گے کیا ہنسیں گے؟ 9 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اندھیری کوٹری کے اندر تھا، اجالے کی دنیا میں آیا ہے. رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ ارے بولیے نا جی. رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ ارے پیچھے سے بولیے نا. بھائی رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ ہنسنا چاہیے ہے نا بھائی. دماغ تو یہی بولتا ہے. لیکن سپوز تصور کیجئے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور پیدا ہوتا ہی ساتھ ہے کر کے ہنسنے لگا. آپ اپنا گھر نہیں بھوپال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے لگتا ہے بھوت پیدا ہوا تبھی تو ہنس رہا ہے. لڑکی ہے یا کہ نہیں؟ ارے تصور کیجئے سپوز بچہ پیدا ہوا ہے کر کے ہنسنے لگا. آپ بھاگیں گے گھر سے نہیں، لگتا ہے بھوت پیدا ہوا. اب بچہ نہ رو سکتا ہے نہ ہنس سکتا ہے. اگر بیچارہ چپ چاپ پیدا ہو جائے، ہوتا ہے نا، چپ چاپ پیدا ہو گیا، گھر والے رونے لگے، لگتا ہے مرا ہوا ہے تبھی تو رو نہیں رہا ہے نا. تو اب بچہ اگر خاموش پیدا ہو تو مصیبت، اگر ہنستا ہوا پیدا ہو تو مصیبت. لیکن بچہ پیدا ہو تو روئے ہی کیوں؟ قربان جاؤ، جب میرا نبی اس دنیا میں آئے تو رویا نہیں. جھوم کے بول دو سبحان اللہ. سبحان. دنیا سے بچے پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی ساتھ روئے، لیکن جب میرا نبی اس دنیا میں آیا رویا نہیں. تو بچہ پیدا ہو تو روئے کیوں؟ احمد ربانی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، بلا لو کسی ویگیانک کو، کسی سائنسداں کو
किसी मंगल ग्रह पे जाने वाले को क्वेश्चन कर लो कि बच्चा पैदा हो तो रोए क्यों, आज तक कोई वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन कुर्बान जाओ, मक्के की टूटी हुई चटाई पे मेरा नबी जलवा फरमा है। अरे दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की टूटी हुई चटाई पर मेरा नबी जलवा फरमा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, एक मसला समझ में नहीं आता कि बच्चा पैदा होता है तो रोता ही क्यों है। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए जाबिर, हकीकत ये है कि शैतान नस्ले आदम का दुश्मन, शैतान नस्ले आदम का दुश्मन। तो जैसे ही कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है, ये मसला याद रखिएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, किसी मजहब का हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। और शैतान नस्ले आदम का दुश्मन। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, शैतान अपना खूनी पंजा उसके पेट में गाड़ देता है, जिसकी शिद्दत से बच्चा बिलबिला के रोने लगता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने कहा है, जब बच्चा पैदा हो कान में अजान कहा करो, कान में इकामत कहा करो, ताकि उसकी बरकत से बच्चे की तकलीफ में कमी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह, जब दुनिया का हर बच्चा पैदा होए तो रोता हुआ, लेकिन मेरा नबी क्यों नहीं रोया? झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोल दो, दोनों हाथों को फजा में लहरा के सुभान बोल अल्लाह, दो, सुभान अल्लाह। मेरा नबी क्यों नहीं रोया जब मेरे नबी की विलादत होने लगी? अरे झूम के बोल दो, जब जिस वक्त मेरे नबी की विलादत होने लगी, मेरा नबी दुनिया में आने लगा, अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील, आज शैतान को गिरफ्तार कर लिया जाए। आज मेरा हबीब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। आगे चलिए, पढ़ूं आगे। जब मेरा नबी, तवज्जो चाहता हूं, जब मेरा नबी दुनिया में आए, सबसे पहले क्या किया? सजदा। क्या किया? सजदा। क्या किया? अब बताओ, सजदा कौन करता है? जो पाक होता है। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, सजदा कौन करता है? पाक होता है। और सजदा किस जगह किया जाता है? जो जगह, यानी मेरे नबी ने वक्त विलादत सजदा करके दुनिया को ये बता दिया, ऐ दुनिया वालों देखो, मैं भी पाक, और जिस जगह में पैदा हुआ वो जगह भी पाक, और जिस माँ के पेट से मैं पैदा हुआ वो मेरी मुकद्दस माँ भी पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। आगे चलूं, पढ़ूं। जब मेरा नबी इस दुनिया में आया तो खतना शुदा आया। खतना शुदा समझते हैं? पहले से खतना, अरे बोलिए ना जी, पहले से खतना, पहले से खतना। सवाल, ए अल्लाह, दुनिया के बच्चे पैदा हो तो उनकी खतना बाद में, लेकिन जब रसूल पाक इस धरती पे आए तो आप पहले से खतना किए हुए क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दुनिया के बच्चे पैदा हो, खतना बाद में, मेरा नबी आया, पहले से खतना क्यों? इसके दो जवाब। ठीक, पहला जवाब, मस्तान साहब तवज्जो चाहता हूं, देखिए तवज्जो चाहता हूं। आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कितने दिन में खतना करवाते हैं? बोलिए। अरे बोलने में डरने की कोई बात नहीं। 1 साल, 2 साल, देखिए जब हो जाए बस तो बोल दीजिएगा बस। 1 साल, 2 साल, 3 साल,
4 साल, 5 साल और आगे 6 साल नहीं, 7 साल मतलब एंड। हाथ कितनी है? 7 साल। ठीक, बात समझ में आ गई? ए अल्लाह, दुनिया के बच्चे पैदा हो तो खतना बाद में, लेकिन जब रसूल पाक इस धरती पे आए तो आप पहले से खतना शुदा क्यों? तो जवाब मिला, अरे नादान, वो हबीब आज पैदा थोड़ी हुआ है, उसको तो मैंने रोज़े अज़ल ही पैदा कर दिया था। वो तो रोज़े अज़ल ही पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जश्न आज़मत मुस्तफ़ा, जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जश्न आमद मुस्तफ़ा, जिंदाबाद विलादत यौम नबी, नारे रिसालत सल्लल्लाहु। उसको तो मैंने रोज़े अज़ल ही पैदा किया, तो ज़ाहिर है खतना शुदा ही आना चाहिए। जो इनके बोल दो, अरे काट पे बोल दो जी, दोनों हाथों को फजा में लगा सुभान के अल्लाह बोल। सुभान अब दूसरा जवाब, खतना है ना, ये एक ऐसी सुन्नत है मेरे नबी की कि दुनिया की हर कौम ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। उड़ाया है कि नहीं? सीने पे हाथ रख के बताओ कैसे कैसे हमें नाम दिए गए कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस्लाम का एजाज है, एजाज। बहुत पहले एक साइंसदान कहकर गुजर गया कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी दुनिया का हर मजहब निकम्मा हो जाएगा, लेकिन मजहब इस्लाम वो मजहब है कि बहुत परवान चढ़ता चला जाएगा। और बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजाक उड़ाए गए, बहुत ताने दिए गए, लेकिन आज कुर्बान जाओ, आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पनामा, रशिया सब ने ऐलान कर दिया है, अगर कैंसर से बचना चाहते हो एड्स, अगर एड्स से और कैंसर से बचना चाहते हो तो खतना कराओ। ये इस्लाम का एजाज नहीं तो और क्या है? आज पूरी ताकतों ने इस्लाम की कट्टर दुश्मन 60-60 साल के बूढ़े खतना करा रहे हैं। इस्लाम की शान नहीं तो और क्या है ना? हाँ, आप सुनिए, खतना रियलिटी में है क्या, है ना? आदमी बहुत क्वेश्चन करता है। खतना रियलिटी में नदी में इंसान के बदन पे एक ऐब होता है जिसको खतना के जरिए दूर किया जाता है। बात आ गई समझ में? इंसान के बदन में, अगर आपको यकीन नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बॉम्बे के अंदर है, टाटा हॉस्पिटल। वहाँ 80% मरीज इसी मकाम पे कैंसर के शिकार हैं। अरे पकड़ लिया, हाथ पर आ लगा। तो खतना है क्या? रियलिटी क्या में पकड़? इंसान के बदन में एक ऐब होता है जिसे खतना के जरिए दूर किया जाता है। ए अल्लाह, दुनिया के बच्चे पैदा हो तो खतना बाद में। रसूल पाक जब इस धरती पे आए तो आप पहले से खतना शुदा क्यों? तो जवाब मिला, अरे नादान, जिस रसूल को मैंने तमाम ऐबों से पाक करके भेजा, उस रसूल को एक ऐब देके दुनिया में कैसे भेज देता? इसलिए मैंने खतना शुदा भेजा ताकि कहा जा सके ये बेऐब रसूल है, ये लाऐब रसूल है, ये ऐसा रसूल है जिसकी जात के अंदर कोई ऐब नहीं। उनके बोल दीजिए, अरे दोनों हाथों को फला में लहरा के बोल दीजिए। आखिरी चीज, ठीक है, टाइम क्रॉस कर गया है, 11:15। आखिरी चीज, ठीक, जब मेरा नबी, तवज्जो चाहता हूं, कीमती चीज दे रहा हूं, जब मेरा नबी इस धरती पे आया, नाफ बुरीदा था। नाफ बुरीदा समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते तो मैं समझा दूं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पेट से माँ के पेट तक एक नाभि लगी रहती, नाड़ी, है ना? जैसे ही बच्चा डिलीवरी का टाइम होता है तो डॉक्टर या दाई उसको काटते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो बच्चा मर जाएगा। हमारे पेट में निशान है कि नहीं? सबके पेट में निशान, उसी नाभि का निशान। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से
बच्चे के पेट तक एक नाभि लगी रहती है, उसको फौरन पैदाइश के बाद डॉक्टर या दाई काटते हैं। अगर नहीं काटे तो बच्चा क्या होगा? अरे बोलिए ना। तो मालूम ये हुआ बच्चा अपनी मौतो जिंदगी के लिए डॉक्टर या दाई का मोहताज हुआ करता है। बच्चा अपनी मौतो जिंदगी के लिए डॉक्टर या दाई का मोहताज। अब क्वेश्चन, ए अल्लाह, दुनिया के बच्चे पैदा हो तो उनकी नाभि बाद में कटे, लेकिन जब रसूल पाक इस धरती पे आए तो आपकी नाभि पहले से कटी हुई क्यों? तो जवाब मिला, अरे नादान, सारी कायनात को मैंने जिस रसूल का मोहताज बनाया, उस रसूल को मैं एक डॉक्टर या दाई का मोहताज बना के कैसे भेज देता? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मैंने सारी कायनात को जिस रसूल का मोहताज बनाया, उस रसूल को दुनिया में एक डॉक्टर या दाई का मोहताज बना के कैसे भेजता? इसीलिए मैंने अपने नबी को ना एक क्वेश्चन आए थे, ये अल्लाह, वही आए थे, बाल की खाल नहीं निकालो ना तो मजा नहीं आता। ये अल्लाह, दिया कराया था जब दुनिया में आपके इस नाभि को कटना ही था, पकड़ना कटना था ना, तो तूने माँ के पेट के अंदर इसको कितना है बात समझ में आ रही? ये अल्लाह, दुनिया में आने के बाद जब इस नाभि को कटना था तो तूने माँ के पेट के अंदर इसको जोड़ा ही क्यों? अरे जा यार, तो साइंटिफिक सुना पहलू से मिलादे मुस्तफा दे रहा हूँ, साइंटिफिक पहलू से मिलादे मुस्तफा। ये अल्लाह जब काटना था तो जोड़ा क्यों? तो देखिए, जब बच्चा शुरू के दिनों में माँ के पेट में होता है, ठीक है, एक नरमो नाजुक गोश्त का लुथड़ा है, जैसे रुई होती है ना, जरा से धक्के में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब माँ है पेट में, बच्चा है, नई नई उम्र है, गोश्त का लुथड़ा है, माँ को चलना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, काम भी करना है। अब वो गोश्त का लुथड़ा जो नरमो नाजुक है, वो जरा से धक्के में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो अल्लाह अपनी कुदरत कामला से माँ के पेट के अंदर पानी भर देता है, माँ के पेट के अंदर पानी भर देता है। अब वो गोश्त का लुथड़ा जो बच्चा बनने वाला है, सारा धक्का पानी में लग रहा है, वो आराम से पानी में तैर रहा है। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से माँ के पेट में पानी भर दिया। अब वो बच्चा गोश्त का लुथड़ा, माँ काम कर रही, उठ रही, बैठ रही, पानी में आराम से तैर रहा है, सारा धक्का पानी में लग रहा है, वो तैर रहा है। सिंघाड़ा कहाँ होता है? तालाब के, लेकिन जड़ कहाँ होती है? तो अब बच्चा माँ के पेट में आराम से पानी में तैर तो रहा है, लेकिन उसको 9 महीने पलने के लिए, पढ़ने के लिए खुराक कहाँ से मिलेगी? किस चीज से पलेगा, किस चीज से पढ़ेगा? तो अल्लाह अपनी कुदरते कामला से, आखिरी नुक्ता जी मस्तान, तो अल्लाह अपनी कुदरते कामला से माँ के पेट से उस बच्चे के पेट तक एक नाभि लगा देता है, ठीक, ताकि इस जरिए से बच्चे को खुराक मिलती रहे और बच्चा 9 महीने तक पलता और पढ़ता रहे। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज, बच्चे की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर क्या होती है? किस चीज से बच्चा 9 महीने तक पलता और बढ़ता है? ये माँ का खून हुआ करता है। माँ का, जब औरत हामला होती है पीरियड बंद, MC पीरियड बंद, माहवारी बंद, क्योंकि यही बच्चे की खुराक है। इसी से बच्चा 9 महीने पलता और बढ़ता है। जो माँ के पेट से उस गोश्त के लोथड़े तक अल्लाह ने नाभि लगाई है, इसी के जरिए माँ का खून यहाँ डाइवर्ट होता है, उसी से बच्चा 9 महीने पलता और बढ़ता है।
बात आ गई समझ में? ए अल्लाह, जब दुनिया में आने के बाद भाई बराबर एक देख बच्चे को जुबान से खाना था, मुंह से खाना था, मुंह से पीना था, तो तूने माँ के पेट के अंदर जो नाभि लगाई, वो माँ के पेट से डायरेक्ट बच्चे के मुंह पे क्यों नहीं लगाती? बच्चे के पेट पे क्यों लगाई? डायरेक्ट बच्चे के मुंह पे लगा देना था। अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, अच्छी तरह जानता है ये बच्चा दुनिया में जाने के बाद इसी जुबान से कुरान पढ़ेगा, इसी जुबान से मिलाद मुस्तफा पढ़ेगा। अल्लाह ने हमारी जुबान की पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए हमारे मुंह पे नाभि नहीं बल्कि हमारे पेट पे नाभि लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोचना कि देखो खुदा ने माँ के पेट के अंदर हमारी जुबान की पाकीज़गी का कितना ख्याल रखा है, और आज हम उसी जुबान से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, ग़ीबत देते हैं, शराब पीते हैं, नशे की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ऐ मुसलमानों, हमें यह चाहिए जिस तरह खुदा ने माँ के पेट के अंदर जब हमारी जुबान को इतना पाक रखा है, तो दुनिया में भी हम अपनी जुबान को पाक व साफ रखें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला, ठीक है? बच्चे की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर क्या चीज है? माँ का किसके जरिए? नाभि के एक जरिए। घंटा के होने वाली है। इसीलिए डॉक्टरों का, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, मुत्तफ़िक़ा फैसला, जो औरत महीने में नापाक ना हो वो माँ नहीं बनती। जिसको एमसी पीरियड नहीं आया वो माँ क्यों? जो बच्चा बनने का मटेरियल है वो उसके पास है ना। और बच्चे की ग़िज़ा क्या है? नाभि के जरिए माँ का। अब तवज्जो चाहता हूँ, जुमला दे रहा हूँ, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल पर जब मेरे नबी की नाभि पहले से कटी हुई, तो मेरे नबी को माँ के पेट के अंदर ग़िज़ा कहाँ से मिली? वो नबी माँ के पेट में 9 महीना किस चीज से पला और बढ़ा? तो जवाब मिला, अरे नादान, जो इंसान मट्टी का होता है उसकी ग़िज़ा माँ का खून होती है। अरे मेरा नबी तो नूर है, उसकी ग़िज़ा तो आलम नूर से आया करती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो नबी की, जब मेरे नबी की नाभि पहले से कटी हुई, तो उस नबी को माँ के पेट के अंदर 9 महीने खुराक कहाँ से मिली? ग़िज़ा कहाँ से मिली? बात आ गई समझ में? तो जो बशर होता है, जो इंसान मट्टी का होता है, उसकी ग़िज़ा माँ का खून। मेरा नबी तो नूर है, उसकी ग़िज़ा तो आलम नूर से आती है। अरे झूम के कह दो मस्तान, मस्तान। सुभान अरे जब अल्लाह। हम माँ के पेट में बनने में रसूल पाक की तरह नहीं हो सके, तो दुनिया में आने के बाद हम रसूल अल्लाह की तरह कैसे हो जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा खिताब। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी कमेटी के जिम्मेदार हजरात, एक बहुत कीमती पॉइंट देना है। चलिए इस पॉइंट को कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है? देखिए, दुनिया के डॉक्टरों का मुत्तफ़िक़ा फैसला, जो औरत नापाक नहीं हो वो माँ। अरे बोलिए ना पंथी। लेकिन मुझे कहने दिया जाए, इसी धरती पर, इसी जमीन पर एक ऐसी भी औरत गुजरी, शहजादी मुस्तफा, खातूने जन्नत, सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप जिंदगी में 1 सेकंड के लिए नापाक नहीं हुई। अरे झूम के बोल दो, सुभान अल्लाह, जिंदगी सुभान में अल्लाह। 1 सेकंड को भी नापाक नहीं हुई, तो फिर इमाम हसन और हुसैन की पैदाइश कैसे हो गई? अरे झूम के बोल दो, सुभान अरे अल्लाह, हाथों को फजा में लहरा के बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हसन और हुसैन की पैदाइश कैसे? जब दुनिया के डॉक्टर
दुनिया के वैज्ञानिक अपना सर पकड़ कर बैठे थे, उसी वक्त बरेली की धरती से बरेली का ताजदार पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, आज जिस मुकद्दस महफिल में आप लोग बैठे हुए हैं, आज का दिन अपने नबी की याद में सब कुछ कुर्बान करने का दिन है। सही तो लगा। जितना लुटाना है लुटा सको। आज की रात अल्लाह ने सबके मुंह खोले। अगर काफिरों ने भी मांगा, अल्लाह ने हबीब का सदका अता किया है ना। आज हमें ये चाहिए। आज ये अजीम शान स्टेज, अजीम शान जलसा मिलादुन नबी मुनक़िद है। इसके बाद अजीम शान लंगर का एहतमाम है। हमारे जो जो भाई इसमें बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। स्टाल लगा हुआ है जी, गेट के करीब। दिल खोल के हिस्सा लीजिए जी। एक सादात हुसैनी सैयद दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन की कामयाबियां कामरानी नसीब। आमीन आमीन आमीन। वाखिर दावाना अच्छा, झोली घुमा रहे हैं आप हजरात से, जो हो सके, जो बने नबी के नाम पर, सुभान अल्लाह अल्लाह, के सुभान हबीब के नाम पे। उठ जाओ। जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजाम इंतजाम पर झोली आपके दरमियान लाई जा रही है। पूरी जिंदा दिली के साथ आप हजरात अपना ताबून डालते जाएं। आखिरी चीज, आज हिंदुस्तान में इतवार की छुट्टी क्यों? हिंदुस्तान में इतवार की छुट्टी क्यों? नेशनल हॉलिडे इतवार के दिन क्यों? एक बहुत कीमती चीज दे रहा है, ठीक है, बहुत कीमती चीज। आज देखिए हर मजहब, माहौल को मुंतशिर न होने दें। खिताब बिल्कुल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात और एहसासात को। माहौल को आप बिगड़ने न दें। बस चंद जुमले और बाकी हजरत के इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम होगा और लंगर तैयार हो चुका है। जी हजरत। आज दुनिया की हर कौम अपने अपने कौम के रहनुमा की जयंती मना रही है। मना रही कि नहीं? जी, मना रही कि नहीं? देखिए, जो जयंतियां हमने पहले सुनी नहीं थी, आज वो हो रही है। लेकिन अफसोस, हमारी ही कौम, हमारे ही पैगंबर, हमारे ही नबी, उनका यौम विलादत मनाने में, समझ रहे? वो बात को नहीं समझ रहे। एक क्वेश्चन सबसे पहला, हिंदुस्तान में इतवार की छुट्टी क्यों? हिंदुस्तान में इतवार को नेशनल हॉलिडे क्यों? हर सरकारी विभाग में इतवार की छुट्टी क्यों? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं। हम उनके पास गए, कहा ये बताइए कि आपके धर्म के अंदर इतवार का दिन बहुत अहमियत का है क्या? कहा नहीं। तो कहा नहीं, हमारे यहाँ तो और बल्कि इसको बुरा कहा जाता है कि इसके ऊपर शनि चढ़ी हुई है, यानी शनिवार पहला शनि चढ़ा हुआ है। कहा भाई हमारे यहाँ तो सबसे शुभ दिन मंगल माना जाता है। उसके बाद हमने कहा बता, दूसरे नंबर पे मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद, क्या आपके धर्म में इतवार का दिन बहुत शुभ है, अच्छा है, माना जाता है? कहा नहीं, हमारे यहाँ तो जुमे को सबसे अहमियत दी जाती है। हम सिख के पास गए, हमने कहा आप बताइए कि आपके धर्म में इतवार का दिन बहुत अहमियत? नहीं, हमारे यहाँ तो बुधवार। हमने कहा फिर हिंदुस्तान में इतवार की छुट्टी क्यों? तो जब तहकीक की तो पता चला, अगर हिंदुस्तान को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान अंग्रेज की पॉलिसियों का गुलाम बना हुआ। क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ ये इतवार की छुट्टी अंग्रेज छोड़कर गए। हिंदुस्तान में इतवार की छुट्टी जी जी, अंग्रेज छोड़कर गए।
हम जितने अंग्रेज वो के बैठे पास हुए ना पहुंचे, गुलाबी भाई हमने बड़ा अंग्रेज है। पर था। हाँ सब आखिर बहुत प्यारी इतवार से पढ़ा था। एक हफ्ते में 7 दिन होते तकरीर भी करा हैं, थे। तुमने बहुत आखिर अच्छी है। इतवार का एक दिन ही वीडियो क्यों में छोड़ा, इतवार के दिन ही को राष्ट्रीय अवकाश क्यों दिया? तो अंग्रेज ने कहा कि हमारे अकीदे के हिसाब से हमारे ईसा पैगंबर इतवार के दिन पैदा हुए, इसलिए हमने इतवार को राष्ट्रीय अवकाश बना दिया ताकि हमारी आने वाली नस्लें कभी अपने पैगंबर के पैदाइश को दिन को न भूलने पाए। अल्लाह हू अकबर। क्या बात है। ये दूसरी कौमें हैं, देखो ये दूसरी कौम है जो अपने पैगंबर के दिन को ऐसा याद रख रही, विलादत के दिन को। और आगे बढ़िए, आज आप किसी भी सरकारी ऑफिस पे चले जाइए, किसी भी सरकारी महकमे में जाइए, काम कितने बजे शुरू होता है? 10 से 10:30 के बीच में होता है कि नहीं? जितने भी सरकारी लोग हैं जानते हैं, काम जो भी सरकारी काम शुरू होगा 10 से 10:30 के बीच में। आखिर भाई सुबह 6 बजे क्यों नहीं, 8 बजे क्यों नहीं, 9 बजे क्यों नहीं, 11 बजे क्यों नहीं, 10 से 10:30 के बीच में क्यों? जब तहकीक की पता चला, पूछा अंग्रेज, बता तूने 10 से 10:30 का टाइम क्यों रखा? तो अंग्रेज ने कहा कि हमारे अकीदे के हिसाब से हमारे ईसा पैगंबर सुबह 10 से 10:30 के बीच में पैदा हुए, इसलिए हमने 10 से 10:30 के बीच का हर सरकारी टाइम रख दिया ताकि हमारी आने वाली नस्लें कभी अपने पैगंबर की पैदाइश के वक्त को न भूलने पाए। देखो मुसलमानों, ये दूसरी कौम जो अपने पैगंबर की याद को, पैदाइश के वक्त को, दिन को किस तरह याद रख रही है। मुसलमानों, आखिरी पैगाम, कभी अपने सीने पे हाथ रखकर सोचना, उनके पैगंबर सुबह 10:30 बजे पैदा हो, तब उन्होंने अपना 10:30 बजे जब उन्होंने काम शुरू किया, आज कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक पहुँचे? चांद, मंगल ग्रह, कितनी तरक्की की कि नहीं की कि नहीं? उनके पैगंबर 10 से 10:30 में पैदा हुए, उनके अकीदे के हिसाब से जब वो 10:30 बजे चले, मंगल गिरे, कहां कहां पहुंच गए। अरे मुसलमानों, हमारा नबी तो सुबह सादिक के वक्त दुनिया में आया है, सुबह 5 बजे आया है। ए मुसलमानों, जब वो 10:30 बजे चले तो कहां पहुंच गए? अगर हम भी सुबह 5 बजे चले होते तो आज हमारी मंजिल कहां होती, हमारा ठिकाना कहां होता, हमारी मंजिल कहां होती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, अपनी फरमाया कि बख्शा।